फोर्थ ईयर की प्लेसमेंट के बारे में उससे पूछ रहे हो जो बैठा ही नहीं। वो भी मेरे जितने ही लॉस्ट हैं. Learn coding. You don't have to be super passionate about it. Not a lot of them actually knew what was really happening. So this is actually going to sound a little controversial. Hello everyone, I am Sanket Singh and welcome back to my channel. So guys, this is a new podcast series that we are going to start. We thought that it's been quite some time since we are working in the tech industry and we also have a lot of opinions on a bunch of things. So I thought me along with Ria, we are going to talk about a bunch of things. ये कोई भी general piece of advice नहीं होगी या हमारा कोई as such कोई agenda नहीं है कि we like walk you through to something. It's just that we are going to have our discussion and a lot of you guys already know about me. I am Sanket Singh. I work as a software engineer at Microsoft and Ria also works as a software engineer at Microsoft. So first of all, let's welcome Ria first time on the channel. So hey Ria, how are you? How's things going on? Thank you, Sanket. I'm really excited for this podcast. मैं बहुत टाइम से ऑलरेडी ऐसा कुछ करना चाहती थी, but I think things didn't fall through for some reason or the other. हो नहीं पा रहा था, and like you know, I either didn't have the bandwidth. But I really wanted to come around and you know share my opinion on something very like you know hot happening right now in the tech. And जो भी हो रहा है, I think उससे related हमारी ये general discussion रहेगी. And I hope you also enjoy the discussion. And it's sort of going to be a tech brew, sort of like a podcast. So I would recommend you also grab your coffee because it's going to be a long discussion. So lately if you see मतलब हमें pass out, we both passed out in the same year in 2020 from college and अब almost 4 years हो गए. It's 2024, 4 Right. years, 4.5 years होने वाले हैं. And we worked at a lot of companies, we worked in a startup as well. और शुरू करे हुए कोडिंग तो काफी टाइम हो गया, मतलब Right. कॉलेज में यू मस्ट हैव स्टार्टेड और मैंने तो स्कूल में स्टार्ट करा था. सो लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट दैट लेट्स से इफ यू हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच अगेन. मतलब कई लोग ये चीज पूछते भी हैं वैसे कि अगर आपको मतलब शुरू से दोबारा चीजें करनी हो देन व्हाट आर द थिंग्स दैट यू फील यू माइट डू न्यू और यू वोंट लाइक टू डू एट ऑल. क्या लगता है तुम्हें, मतलब अगर कोई शुरू कर रहा है या तुम अगर शुरू करती तो हाउ योर जर्नी शुड हैव बीन? Okay, so this is actually going to sound a little controversial, and like I think by learning only a lot, I got to realize these things. Ki first thing that I would not do at all is listen to my college seniors. I think because I had to talk to a lot of my seniors, I felt a little lost in the journey कि यार कहाँ से पढ़ना है कहाँ नहीं पढ़ना है. I talked to a lot of second year seniors and third year seniors और मुझे ये realize हुआ कि वो भी मेरे जितने ही lost हैं. ठीक है, मैं जब second year में गई मुझे भी उतना idea नहीं था, तो I feel like they were probably not the best person to take guidance from. I would also say at that point the person who is in fourth year, ठीक है, and who had not had a PPO, जो fourth year में गया और उसने college interview के लिए either on campus या off campus appear हुए हैं, offer grab किया है, preferably a little early when the college placement starts. They are, I feel like, a good choice to take guidance from क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा ना जर्नी देख लिया है. Not a lot of seniors जो मेरे थे, for example in second year, third year, not a lot of them actually knew what was really happening and they were also like you know blindly just trying out a bunch of things and doing stuff. So I feel like one of the things which I will not do is definitely take their advice, and I would look for somebody slightly more senior in the field, right, to know कि यार actually first year में आके मुझे करना क्या चाहिए या मेरा road map क्या होना चाहिए. I think that was something which I realize now after almost 7 to 8 years, 3-4 साल college के, 3-4 साल पढ़ने के, I realized this was something very important for me. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब ऑफ कोर्स सारे सीनियर्स ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें नहीं भी कर रहे होते हैं, बट मेरे को लगता है कि इफ यू सीक अ पीस ऑफ एडवाइस तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए जिसने मतलब जिसके पास कुछ हो, प्रूफ ऑफ वर्क हो कि हाँ भाई इस बंदे ने ये चीज कर ली है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ कॉलेज में क्या सिनेरियो था दैट आई डिडंट नो अबाउट जीसॉक और एनीथिंग. मैं इसरो पे अपने सीनियर्स के साथ इंटर्न के लिए गया था एंड वन ऑफ द सीनियर्स वाज एन एक्स जीसॉकर ऑफ द लास्ट ईयर, तो दे गाइडेड मी वेल. बट अब मैं रैंडमली जाके किसी सीनियर से ऐसे पूछता कि लाइक कैसे करते हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, लाइक इज इट इंपॉर्टेंट आल्सो, तो मुझे लगता है फिर वो रैंडम जो तुम्हें यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ी हुई बातें मिलती हैं वो तुम्हें सीधा चिपका देते. बट that person actually guided me well. मतलब he also motivated because he knew कि क्या dev experience I bring onto the plate, तो उसने बढ़िया motivate करा कि यार मतलब नहीं करना चाहिए. तो मतलब this is like the bare minimum. अगर तुमने कॉलेज में चीज ट्राई नहीं करी ना, क्योंकि तब क्या होता था जीसॉक वगैरह सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होता था, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए नहीं होता था 2019 में. तो उन्होंने कहा अगर तुमने कॉलेज में चीज ट्राई नहीं करी ना तो फिर तुम हो सकता है बाद में कभी ट्राई ना कर पाओ, ये एक्सपीरियंस तुम्हें कभी आएगा नहीं. तो मेरे को लगता है तुम्हें मतलब सीनियर्स के पास जा सकते हो बट उसके बाद जाओ जिसके पास कुछ प्रूफ ऑफ वर्क हो. अब जैसे किसी ने पीपीओ बढ़िया फोड़ा है तो उससे तुम पूछ लो कि पीपीओ के लिए क्या मेहनत करनी चाहिए, ना कि तुम फोर्थ ईयर की प्लेसमेंट के बारे में उससे पूछ रहे हो जो बैठा ही नहीं प्लेसमेंट में ऑन कैंपस, वो तुम्हें क्या बताएगा. Exactly this point on GSOC that you said, I see
like because we are in the YouTube space, we are in the Instagram and the social media space. I see so many people going up on social media and like YouTube and making videos about this fact कि यार GSOC कैसे clear करना है, GSOC का road map क्या है, everything about that. But the person has never really done GSOC, right? तो वो sort of credibility मुझसे like you can't expect कि मैं आपसे आके एडवाइस लूँ या मैं आपकी वीडियो को उतना सीरियसली लूँ, बिकॉज आपने चीज ऑफ करा नहीं है कभी, राइट? द पर्सन हु हैज ओनली डन इट इज द वन हु कुड रियली I would say give you the right advice on. So I think again, if I'm starting everything again and I would start to learn coding again, I think मैं definitely सिर्फ उन्हीं की advice लूंगी which who have actually done something, they have some proof of work like you said, and उन लोगों ने कुछ like कंसिडरेशन किया है. इफ आई एम टेकिंग एडवाइस फॉर इंटर्नशिप्स तो उन्होंने इंटर्नशिप्स करी होनी चाहिए, राइट? अगर मैं प्रोजेक्ट के लिए एडवाइस ले लूँ तो उन्होंने प्रोजेक्ट करा होना चाहिए. तो आई थिंक दैट इज वेरी अग्रीएबल, द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड डू. द सेकेंड थिंग दैट आई वुड रियली डू इज दैट आई वुड गिव slightly more importance to data structures. I felt like कि मैंने third year तक like I was doing DSA but मैंने ना साथ साथ dev भी start कर दिया था because I was doing a lot of internships. But I think जब fourth year में actually आए, especially for college placements, I realized they were just asking DSA, right? तो अगर आपने उस चीज पे ज्यादा focus किया हुआ था initial years में college में, not even just first year आप enjoy कर सकते हो. I enjoyed my first year, but I felt like second year में आते आते थोड़ा सा DSA को लेके seriousness का level ज्यादा होना चाहिए. प्रोजेक्ट्स रेज्यूमे में आप डाल सकते हो, दैट इज ऑब्वियसली अ गुड थिंग, बट आई फील लाइक कि मतलब डीएसए ने काफी एक इंटरव्यू स्पेस को टेक ओवर कर लिया है इन टर्म्स ऑफ द क्रेडिबिलिटी व्हेन यू आर बीइंग इंटरव्यूड फॉर कंपनीज. नहीं, इनफैक्ट आई आल्सो टोटली एग्री विद दैट फैक्ट. मतलब आजकल बच्चों का क्या है कि देखो वो डीएसए पढ़ रहे होते हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको इंटरव्यू चाहिए. तो मतलब या इंटरव्यू क्रैक करना है या अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे लगता है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना वो खुद भी कोई एफर्ट नहीं करते. मतलब मैं भी ये बात मानूंगा कि जब मैंने डीएसए करना स्टार्ट किया था तब हैकररैंक वाज प्रीटी रेलेवेंट, कोडशेफ वाज प्रीटी रेलेवेंट, तो सीधा जाके उस पर क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए. बट आजकल अब मतलब व्हेन आई बिकेम लाइक आई एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग एज अ फुल टाइम इंजीनियर, तो मुझे लगा कि मतलब डेटा स्ट्रक्चर के अंदर तुम और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज केसेस बना सकते हो और उस तरीके से पढ़ना ज़्यादा बढ़िया रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर तुम देखो जैसे स्विगी जैसी एप्लीकेशन है, स्विगी जैसी एप्लीकेशन तुम्हारे लिए नियर बाय राइडर असाइन करती है तुम्हारी फूड डिलीवरी के लिए. वो नियर बाय चीज कैसे निकल के आती है, तो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है क्वाड ट्री. तुम अपनी क्वाड ट्री कोड कर सकते हो. मतलब अब तो वैसे लीड कोड पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि कंस्ट्रक्ट योर ओन क्वाड ट्री, बट तुम ऐसा कुछ सोच सकते हो कि यार ये वाली चीज इंटरनली कैसे चलती होगी, और फिर और थोड़ा डेप्थ में जाके देखो. डेटाबेसेस में ऐसे इंडेक्स होते हैं, बी ट्री से बनते हैं, ट्राइस से बनते हैं. ऐसे एप्लीकेशन पढ़ने के बाद फिर उस डेटा स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करो, तो वो वाली चीज होती है. ऑफ कोर्स लीड कोड ग्राइंड तो देखो करना ही है. मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक कि मतलब डेली एक्सरसाइज है तुम्हारी. अगर तुम्हें फिट रहना है तो तुम्हें डेली एक्सरसाइज करना ही है, उसमें तो ज्यादा कुछ तुम नहीं कर सकते ना. बट जो तुम्हारी मील्स है उसको तुम थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हो. ऐसे ये वाली चीज मुझे लगती है. जैसे तुमने डेटा स्ट्रक्चर के लिए कहा, मैं अपने कॉलेज टाइम में मुझे लगता है कि डिसेंट इनफ फोकस देता था. ऐसा नहीं करता था कि बहुत ज्यादा ही डीएसए करने की. मेरे कॉलेज में ऐसा कंपनीज आती नहीं थी और मैं खुद से भी मान के बैठा था कि मतलब अपना खुद से फाइट करनी है, तो डेव को इक्वली इंपॉर्टेंस देना और मतलब सही पीयर बनाना, इस चीज पे मैं फोकस करता था. तो अगर कोई मुझसे पूछेगा मतलब कि क्या चीज और बेटर कर सकते हो, तो मैं मतलब मेरा ऑलरेडी पीयर ग्रुप काफी बढ़िया था, बट मैं और थोड़ा और बेटर पीयर ग्रुप बना सकता था. और मेरे को ऐसा लगता है कि आउट ऑफ कॉलेज मेरे पीयर ग्रुप थोड़े कम थे. मतलब मेरे अपने कॉलेज में थे बट दूसरे कॉलेज के बच्चे भी मतलब इनफ मचा रहे होते हैं. तो उनसे इफ आई वुड हैव कनेक्टेड अर्लियर, मतलब फर्स्ट ईयर में अगर उनसे बेटर कनेक्ट हो जाता ना, तो सही लगता है. क्योंकि फर्स्ट ईयर में मतलब थोड़ा बंदा दबा रहता है कि भाई मतलब क्या करूं क्या ना करूं, तो आप अपने कंफर्ट जोन में तुम रहते हो. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम यही डेटा स्ट्रक्चर्स के डिस्कशन है, तुम्हारा प्रैक्टिस है, कौन बाकी लोग क्या कर रहे हैं, तुम दूसरे कॉलेज के अगर लोगों से मिलोगे, दूसरे स्पेस के लोगों से मिलोगे ना, दैट वुड बी प्रीटी नाइस. क्योंकि थोड़ा पर्सपेक्टिव मिलता है कि अच्छा वहां पे क्या हो रहा है. और मतलब नॉर्मल जैसे हमारे टियर 1 जो नॉन आईआईटीज हैं उनमें तो इतना कल्चर नहीं है, बट आईआईटीज में मैंने देखा था. मतलब मेरे एक दोस्त है, वो एसीएम आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनलिस्ट है. उन्होंने बताया था कि मतलब आईआईटीज में कॉमन मतलब ऐसे ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं कि जैसे आईआईटी बीएचयू में मान लो गूगल इंटरव्यू करके गई, तो दे विल टेल मतलब इन द कॉमन फोरम कि गूगल इस टाइप के क्वेश्चंस इस बारी पूछ रही थी. तो जब वो लेट्स से आईआईटी बॉम्बे आएंगे तो आईआईटी बॉम्बे पीपल माइट बी हैविंग सम कॉन्टेक्स्ट. तो एक बढ़िया पूल अपना बना के रखते हैं. मे बी वी शुड लाइक ऑल्सो ट्राई टू डू दिस कि मतलब डेटा स्ट्रक्चर करना है, उसको करने का इंटरेस्टिंग तरीका हो सकता है. तुम और लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, टीम कॉम्पिटिशंस में जा सकते हो. मतलब ठीक है लगाओ भाई, बैठ के लीड कोड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर कि मतलब इस प्रोसेस में तुम्हें मजा है. 4 साल 3 साल तुम्हें करना है. यू डोंट वांट टू बी बोर्ड. आई वुड से दैट. राइट डेफिनेटली. तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एल्गो कैंप पे आने वाले एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ. तो वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड द मर्न स्टैक लाइव
फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। इस कोर्स में हम लोग रिएक्ट से लेकर एक्सप्रेस.js, फास्टिफाई, हर एक चीज फुल स्टैक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से एंड टू एंड कवर करने वाले हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज हमने डाली है, जैसे कि जो भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होंगे सब कुछ हम लोग टाइपस्क्रिप्ट का यूज कर रहे होंगे। एंड टू एंड जो प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने रखे हैं वो रखे हैं एक स्ट्रीमिंग ऐप, गूगल डॉक्स का क्लोन, और साथ ही साथ तुम्हें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उबर क्लोन भी मिलेगा, जिसमें तुम ये देखोगे कि कैसे जियो लोकेशन बेस्ड डेटा को हैंडल करते हैं, किस तरीके से नियर बाय लोकेशंस वाले ड्राइवर्स को तुम एक्सेस कर सकते हो। स्ट्रीमिंग ऐप में तुम्हें पता लगेगा कि किस तरीके से तुम वीडियोस की प्री प्रोसेसिंग कर सकते हो ताकि वो डिफरेंट इंटरनेट स्पीड पे या डिफरेंट बैंडविड्थ पे अलग अलग यूजर्स को अलग अलग क्वालिटीज में दिख पाए। गूगल डॉक्स के प्रोजेक्ट में तुम ये करने वाले हो कि किस तरीके से एक सेम डॉक्यूमेंट पे 2 या 2 से ज्यादा लोग सेम लाइन को एडिट कर पाते हैं सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे। ऐसे ही बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स, स्मॉल मिनी प्रोजेक्ट्स, मेजर प्रोजेक्ट्स, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने इंक्लूड करे हैं। कोर्स पूरा एंड टू एंड इंग्लिश में होने वाला है। कोर्स के जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी आई वुड से लेसन्स हैं, वो सब कुछ हमने वेबसाइट पे काफी डिटेल्ड मैनर में ऑलरेडी लिस्ट कर लिए हैं। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट, तुम्हें इसमें DSA एंड टू एंड रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रहा होगा, जिसमें हम लोगों ने 300 से भी ज्यादा क्वेश्चंस करे हुए हैं। DSA का पार्ट तुम्हारा इंग्लिश में होगा एंड ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी वन बंडल दैट यू कैन एक्चुअली ऑप्ट फॉर। तो इस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिया है, डू चेक इट आउट। तुम ये कूपन कोड भी यूज कर सकते हो इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। बट एक चीज की गारंटी रहेगी, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर दिस कोर्स, तो तुम्हारे रिज्यूमे में किस तरीके से तुम इंटरेस्टिंग इंपैक्टफुल प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो, ये वाली वरी तुम अपने दिमाग से निकाल सकते हो एंड यू कैन जस्ट फोकस ऑन योर अपकमिंग लर्निंग। साथ ही साथ एक बारी तुम्हारा रिज्यूमे इन सारे प्रोजेक्ट के साथ बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो DSA का पार्ट तुम्हें हेल्प करेगा अपने फाइनल एंड टू एंड इंटरव्यूज को क्रैक करने में और फाइनली एक बहुत ही बढ़िया जॉब लैंड करने में। इसके साथ साथ जो भी कोर्स के टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे, आई विल मेक श्योर दैट आई ट्राई टू अरेंज मे बी एटलीस्ट 1 रेफरल फॉर देम। तो जो भी तुम्हारी परफॉर्मेंस होगी, जितना तुम क्लास में अटेंडेंस मेंटेन करोगे, बेस्ड ऑन दैट आई विल बी मे बी हेल्पिंग आउट यू। और भी बहुत सारे आई वुड से जॉब ओरिएंटेड सेशंस रहेंगे कि किस तरीके से तुम अपना बढ़िया रिज्यूमे प्रिपेयर कर सकते हो, किस तरीके से तुम अपनी अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल प्रिपेयर कर सकते हो एंड व्हाट नॉट। बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल, इंटेंसिव और एग्जॉस्टिव कोर्स रखा है हमने, सो डू चेक इट आउट। और अब वीडियो पे चलते हैं वापस। I think with all the points that we discussed, एक चीज which like you know, this is sort of not related to what you know how you're physically doing things, but sort of like your mental temperament when you're preparing for coding or whenever you're preparing for interviews also. I think which like sort of our university professors and everything did that, and maybe you could also put some light here, sahi hai ki nahi? But I felt like in order to get a job and in order to really you know like learn coding, you don't have to be super passionate about it. ठीक है? Like usually university professors and you know सब ये तुम्हारे दिमाग में फीड करते हैं कि यार if you're not passionate about it तो तुम नहीं कर सकते हो, right? Which is completely untrue. You don't have to be super passionate about it, although if you are, it will definitely give you a edge. But like you know, just feeling, because you know tech is at boom, right? Coding and all you are able to get good jobs in the tech industry. Like being passionate about just you know being in a nice place, in a good work environment where you're being paid fairly, right? And then you are able to sort of use that money to you know maybe fulfill your wishes or fulfill your hobbies. That is the motivation enough for you to be able to do excel and to you know sort of clear interviews. You don't have to be like you know I have to love this thing in order to really you know excel at it or be great at it. Obviously that will make you slightly more nearer to the excellence part of the job, but yeah, it should not really stop you from trying to get into a tech industry and a job, I think. Got it, makes sense. और इसके अलावा मतलब मेरा एक और पॉइंट है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट वी कुड हैव डन बेटर, तो मेरे को एक चीज लगती है कि मैं एक सर्टेन लेवल पे बहुत ही, या मैं कहूँ 10% लेवल पे ही लर्निंग इन पब्लिक टाइप करता था। मतलब जब मैंने डेव नहीं पढ़नी स्टार्ट करी, तो आई यूज्ड टू मेक सम प्रोजेक्ट, ऐसे कुछ मैंने गेम में बनाई, जैसे पिंग पोंग टाइप की गेम बनाई थी, तो उसको मैंने उसका ऐसा छोटा सा क्लिप बना के यूट्यूब पे उसका क्लिप रिकॉर्ड करके ऐसे फेसबुक पे डाल दिया था। और फेसबुक इज नॉट अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, बट अगर वो चीज मैं मे बी लिंक्डइन वगैरह पे करता तो थोड़ा और बेटर होता। बट उससे भी मेरे को थोड़ा इनफ विजिबिलिटी मिली, बिकॉज जो भी मतलब जैसे टेक में अगर कोई और लोग हैं, कोई सीनियर से मैं उनको कनेक्ट तो कर ही लेता है। दैट टाइम फेसबुक वाज मोर रेलेवेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट देन इंस्टा एंड लिंक्डइन एज ऑफ नाउ। तो वहां से मेरे को काफी सारी अपॉर्चुनिटीज पता लगती थी एंड लाइक समबडी इन दैट स्पेस ओनली कॉल्ड मी कि यार मतलब देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड दे आर हैविंग अ स्मॉल स्टार्टअप एंड दे आर लुकिंग फॉर इंटर्न्स एंड दैट्स हाउ आई वाज एबल टू गेट माय फर्स्ट इंटर्नशिप इंटरव्यू। अगर इस टाइम पे इफ आई हैव टू लाइक डू दैट, तो मैं मतलब ट्विटर को और लिंक्डइन को एक मतलब बढ़िया टूल समझ के आई ट्राई टू कीप बी कंसिस्टेंट इंस्टेड ऑफ टॉकिंग शिट, मतलब बकवास बात करने से और मोटिवेशन ऑफ द डे डालने से बेटर राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर मैं उस पर क्या मेरी प्रोग्रेस है, मतलब अगर मैंने कुछ डेव पढ़ा है, क्या बढ़िया डेव पढ़ा है, और मतलब दूसरों से नया क्या पढ़ा है। जरूरी नहीं है ना कि अगर तुम लर्निंग फेज में हो तो तुम किसी को कुछ नहीं बता सकते, ऐसी बात नहीं है। तुम भी किसी को मतलब तुमने कुछ अच्छा क्रेजी पढ़ा, यू टेल इट एंड देन ग्रेजुअली 4 साल के पीरियड में ना सोशल मीडिया ग्रो करना ऐसे
ऐसे कोई बहुत ही क्रेजी वो नहीं है. ऑफ कोर्स मतलब तुम ऐसे मिलियन में फॉलोअर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट यू विल बी हैविंग अ डिसेंट क्राउड. तुम लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्ट हो जाओगे एंड पीपल विल नोटिस यू. यू विल नॉट बी अ नोबडी एंड देन व्हेन यू विल टॉक टू देम अबाउट सम अपॉर्चुनिटी दे विल कंसीडर यू प्रीटी सीरियस अबाउट इट. सॉर्ट ऑफ लाइक एक अकाउंटेबिलिटी आता है, राइट? जब आप पोस्ट कर रहे हो, लाइक इवन इफ नोबडी इज फॉलोइंग यू, राइट, बट यू हैव दैट अकाउंटेबिलिटी इन योरसेल्फ कि यार मतलब मुझे पोस्ट करना है, आई हैव टू शो सम प्रोग्रेस. इफ आई डिड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस अ फ्यू डेज बैक, अगर मैं आज एक भी क्वेश्चन कर रहा हूं तो दैट मींस आई एम बीइंग obliged to do that because I have to post on social media. I think that is one thing with me. मैंने कभी learning in public नहीं किया honestly. Like I was sort of hesitated a little bit कि यार मतलब people will judge me on the fact कि यार आज मैंने ज़्यादा पढ़ा, आज मैंने कम पढ़ा. But I feel like in the long run it would have really helped me if I would have started learning in public. Even if I'm doing the bare minimum, it would have, you know, sort of 0.1% every day would have sort of accumulated into something really big later. Even if you start in second year, it's a good thing. But अगर मैंने first year में ही कर लिया होता, I feel like it would have just like, you know, made my like overall journey slightly more smoother instead of just preparing hardcore before the interviews and you know that sort of pressure that comes with it. I feel like वो कम होता काफी. Make sense. और नहीं मतलब ये चीज इंपॉर्टेंट भी होती है, वरना मतलब अगर तुम कुछ पढ़ रहे हो एंड इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ लेट्स से वेरी रिनाउंड कॉलेज, देयर इज अ हार्ड टाइम दैट यू विल फेस कि मतलब लोग नोटिस नहीं करेंगे. मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, तुमसे बेटर पढ़ रहे हैं लोग, तो बहुत सारे लोग हैं, तो यू हैव टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड. और मतलब लर्निंग इन पब्लिक इज अ नाइस थिंग. अ लॉट ऑफ पीपल प्रमोटेड इट एंड पीपल आर टेकिंग इट स्लाइटली सीरियसली कंपेयर टू दैट ऑफ 2017. बट ये चीज तो मैं स्पेसिफिकली मतलब एक इंक्लूड करना चाहता है कि भाई ये तो करूंगा ही. एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैं अवॉइड करना चाहूंगा, आई वुड डेफिनेटली अवॉइड समथिंग लाइक अ ट्यूटोरियल हेल्प. ठीक है, ये चीज मैं अवॉइड करूंगा. मतलब जैसे डीएसए में तो चलो ये चीज फिर भी कम होती है. डेव वाले पार्ट पे लोगों को लगता है कि यार मैं फ्लटर भी पढ़ लूं, मैं मतलब रिएक्ट नेटिव भी पढ़ लूं, मैं फिर रिएक्ट भी पढ़ लूं, मैं बैकएंड में ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं. और मतलब चलो ठीक है, तुम इतने सारी चीजें पढ़ भी लो. पढ़ने का मतलब तरीका क्या होता है, ऐसे मतलब यूट्यूब पे फ्री लेक्चर हैं, वो खोल के बैठ गए और जो इंस्ट्रक्टर लिख रहा है वही तुम लिखे जा रहे हो एंड थिंग्स जस्ट गो ऑन. मैं इस अप्रोच को डेफिनेटली खुद के लिए बदलता है. मैंने भी कई हद तक एक ट्यूटोरियल हेल में टाइम स्पेंड करा है. मतलब 8 महीने खराब करे होंगे मैंने. उससे बेटर अगर मैं कुछ कर सकता तो मैं ये करता कि भाई मैं देखता हूँ ट्यूटोरियल, डेफिनेटली देखता, लेकिन दूसरे तरीके से कि यार मतलब ट्यूटोरियल स्टार्ट हुआ, वो दिखाता कि भाई क्या बनाने वाले हैं एंड टू एंड. पहले तो खुद बनाने की ट्राई करते हैं, और चलो पूरा का पूरा नहीं बनाना तो चलो वो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल वीडियो डिवाइडेड होती है, तो उस वीडियो के मतलब उस मॉड्यूल के स्टार्ट में वो क्या बनाने की एजेंडा रख रहा है. कैलकुलेटर ही है ना, तो पहले वो कैलकुलेटर का यूआई बनाए, हम पहले खुद बनाएंगे कैलकुलेटर का यूआई, उसके बाद देखेंगे वो क्या कर रहा है, उसका बस सुन लेंगे बट कोड खुद से लिखेंगे. वो वाली चीज मैं करता. हाँ, इनिशियल लर्निंग एक बार जब तुम बेसिक रिएक्ट पढ़ रहे हो तब चलो ठीक है तुमने देख लिया, बट ये प्रोसेस बार बार रिपीट करके किसी को कोई फायदा होता नहीं है एज सच. या तो तुम जो ट्यूटोरियल की डिफिकल्टी है ना वो बढ़ाते जाओ. मतलब पहले तुमने एक बहुत ही बेसिक सा टू डू लिस्ट बनाया, फिर उसके बाद तुमने थोड़ा ई कॉमर्स टाइप बना लिया, फिर उसके बाद तुमने एकदम कैसे कुछ क्रेजी स्विगी का मतलब एक स्पेसिफिक पार्ट उठा के बना लिया कि यार मतलब राइडर एलोकेशन या कुछ मैप्स रिलेटेड कुछ बना लिया. मतलब ऐसे तुम डिफिकल्टी ना बढ़ाते जाओ. या तो एक ही जैसे प्रोजेक्ट की मतलब ई कॉमर्स का फ्रंट एंड सा है, फिर तुमने ऐसे बुक माई शो का फ्रंट एंड सा बना लिया, इसमें किसी का कोई फायदा नहीं होगा. और मेरे ख्याल से YouTube पे फ्री प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल से बेटर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो लोग नहीं देखते, कॉन्फ्रेंसेस की बहुत सारी वीडियोस पड़ी होती हैं, जो मतलब सीनियर इंजीनियर कॉन्फ्रेंस में एज अ स्पीकर आते हैं. बिल्कुल अनटैप्ड पोटेंशियल है, और मतलब लेटेस्ट चीजों के ऊपर बात करते हो. तुम जाके रिएक्ट की मान लो लास्ट ईयर की कॉन्फ्रेंसेस के एक बार टॉक देखो. हो सकता है मतलब कुछ लोग हो सकता है बोर हो जाए, मेरे को नहीं पता, बट अगर तुम इंटरेस्टेड हो मतलब टेक में ना और तुमने वो टॉक सुन ली, तुम्हारा एकदम दिमाग खुल जाएगा. तुम्हें लगेगा कि मतलब जो तुम्हें बता रहे हैं एक तो उन्हें कुछ नहीं आता, तुम तो जो जानते थे वो तो था ही नहीं कुछ, और देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. और वो लोग जो एग्जांपल लेकर आएंगे ना, जो कॉन्फ्रेंसेस में एज अ स्पीकर आते हैं, वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो एक्चुअली इस चीज को या तो बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं. दिस इज समथिंग दैट आई वुड हैव डन. अगर ट्यूटोरियल्स देखने थे ना, मैं इनके ट्यूटोरियल ज्यादा देखता. मैं तब रियलाइज नहीं करता था और मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसे वीडियोस फ्रीली अवेलेबल होती हैं या ऐसा कुछ क्रेजी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती है, बट आई वुड हैव डेफिनेटली डन दैट. व्हाट डू यू थिंक? Yeah, I think this topic sort of calls for another video altogether on how to fully utilize the space of conference talks, and then like videos that are available on the internet. But yeah, that is a very severely untapped potential, and you know, the content that is available on YouTube, that is, I definitely agree ki this should something be sort of glamorized more, in the sense that people should be made aware about it. Even I think with the peers that you work with, like there's very less concern about people about conferences and everything, which is a great way to, you know, learn from people. But I think with that, I think another point that comes in my mind is, which I was doing in my own time, is that when I was learning DSA, I was comparing my journey a lot with my peers, thinking ki yaar, this person is too ahead of me, this person is, you know, up, like, you know, behind me, and in the back end everyone was studying on their own, right? तो कोई अपनी जर्नी शेयर नहीं कर रहा होता है, बट सब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं. Many people are not comfortable sharing it. So another thing is, don't compare your journey with others. ठीक है, मेक श्योर कि अगर आपने सोचा हुआ है कि आपको इन like semester wise
otherwise इस 6 महीने में DS से पढ़ना, just focus on your own journey. You have relevant metrics available to know कि आपने सही से करा कि नहीं. लीड कोड के कॉन्टेस्ट, पहले लीड कोड के कॉन्टेस्ट नहीं थे to be honest. When we were doing lead code, there were no lead code contests at all. Now you have such a good availability कि आप एक sort of unit test दे पा रहे हो every week to know कि आप कैसा stand कर रहे हो वहाँ पे. So like bottom line is that do not compare your journey with others. Make sure you have your own roadmap available. Obviously reach out to your seniors to know that you're doing right or not, and are you really fully prepared for the internship companies and the full-time companies that are coming. But make sure you have your own journey, you have your own benchmarks available to judge yourself, and uske basis pe feel free to sort of take help from others and like go along in that journey. Because usse kya hota hai na, actually another thing that comes into play is that you will see a lot of videos, YouTube videos online, but college का tier बहुत ज़्यादा important है. Makes sense. The way to reach that, obviously भाई आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, आपके जेई में कैसे मार्क्स आए, you cannot really control that after a certain point, but where you land in a tier 1, tier 2, tier 3 college, that will sort of decide a lot your preparation journey for the next 3-4 years. Because अगर आपका अच्छा college है, like my college had decent companies. In fact, by the time I left, so many companies were coming in my Facebook college. Used to come to Exactly, and like you will not find even IITs, all the IITs appearing for interview for colleges. हमारे college में आती थी, and I felt like मैंने उसको value ही नहीं किया इतना ज़्यादा, right? I should have been more focused on the fact that I come from a college जहाँ पे इतनी companies आती हैं, and you just have to compete with 50, 60 or probably 100 more women who were actually with me in that same pool, compared with the fact कि बाहर you have to compete with like thousands of students. So I think उसको लेके ना अपनी preparation journey को aligned रखना. That's why it's different for different people. Tier 1 में हो तो focus रखोगे, campus placement हो जाए तो it's a very good thing. तो उस हिसाब से आपकी journey अलग होनी चाहिए थी. मेरी भी journey थोड़ी better होनी चाहिए थी in terms of on campus placement. और अगर आपकी Tier 3 या Tier 2 colleges यहाँ पे आती ही नहीं है company, सिर्फ service based company आती है, तो अपनी preparation journey को अलग तरीके से रखो. Make sure उसी तरीके के senior से आप बात कर रहे हो जो Tier 3 से place हुए हैं. तो like ऐसा नहीं है कि आप Tier 3 college से हो पर आपका कोई सीनियर Tier 1 से आप उससे एडवाइस ले रहे हो. The journey is not going to be relevant at all. नहीं, मेक सेंस. मतलब अगर तुम्हें पता है तुमने एक बारी कर लिया ना मेहनत, मतलब जेई में तुमने कुछ तो मेहनत करी होगी और उसके बाद ही लाइक यू लैंडेड अप इन अ गुड कॉलेज, तो मतलब यूज दैट थिंग. मतलब बाकियों को नहीं मिल रहा है भाई वो. Correct. जो लोग नहीं उस कॉलेज में आ पाए, दे आर गोइंग टू अ Tier 2 और Tier 3 और मे बी इवन वर्स कॉलेज, तो मतलब उनको वो चीज नहीं मिल रही. तो तुम्हारे पास ऑलरेडी कम कंपटीशन है. तुम बाहर एक बार निकल के देखो, मतलब ऑफ कैंपस जॉब्स में तुम्हें पता लगेगा. मतलब एप्लीकेशंस जो लोग ऑन कैंपस है वो तो कर ही रहे हैं, और फिर बाकी के ऑफ कैंपस वाले भी कर रहे हैं. इतनी ज्यादा होती है ना, देयर इज टू मच कंपटीशन. After a certain time वो पढ़ भी नहीं रहे हैं, उनका पूल खत्म हो चुका है ना. If they want to hire 5 people or 500 applications आई, they're not even reading applications after that. मतलब if they find it's kind of like first come first serve. ऐसा नहीं है कि तुम्हारी एप्लीकेशन भी पढ़ी ही जाएगी. Correct. और मतलब ये तो वो चीजें हैं जो मतलब हम लोग बेटर कर सकते थे. एक चीज मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा जो मैं करता था, और अगर मैं दोबारा भी जर्नी शुरू करूंगा तो मैं डेफिनेटली करूंगा, इसकी I used to find as much as internships as possible. मतलब मैं 3rd सेमेस्टर से हर सेमेस्टर या हर सेमेस्टर के ब्रेक में किसी तरह की टेक इंटर्नशिप, Even unpaid. इवन अनपेड, मतलब मैं कहूंगा, मतलब अनपेड में मेरा ओपिनियन है कि अनपेड नहीं करो तो बेटर है. कि मतलब लोग ऐसा होता है कि तुम्हें तुमसे बहुत ज्यादा काम करा रहे हैं एंड देन यू डोंट लूज मोटिवेशन. बट इवन इफ यू आर लेस पेड तो कर सकते हो. आई वुड गो फॉर लेस पेड. बट मैं इंटर्नशिप डेफिनेटली और करता, और मतलब ये चीज मैं करता भी था और आई वुड हैव कंटिन्यूड. क्योंकि इंटर्नशिप करके जो तुम्हें डेव पता लगती है ना, मतलब वो तुम्हारी किसी कोर्स में पढ़ी हुई डेव से बहुत अलग होती है. मतलब मैंने भी कहीं से वेब डेवलपमेंट वगैरह पढ़ा था एंड दे टॉट मी रियली नाइस, मैं ऐसा नहीं कहूंगा. बट जब मैं पहले दिन गया इंटर्नशिप पे, मुझे लगा था सीधा कोड लिखना होता है. दे गेव मी अ पेन एंड पेपर और मुझसे कहा गया कि मतलब एंगुलर की फ्रंट एंड की इंटर्न थी, एंगुलर में दे राइट टाइपस्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग. तो कहा कि भाई पूरी क्लास डायग्राम्स एंड एवरीथिंग बना के लाओ और फिर देखते हैं कि तुम्हारा क्लासेस वगैरह कैसे सेटअप हुई है, और देन ओनली यू विल कोड. मतलब ये चीज तो मैंने कभी सोची नहीं थी. अपने कोर्स में तो सीधा हम लोग कोड लिखना शुरू कर देते हैं, खराब कोड लिख रहे हैं, सही कोड लिख रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा. तो देन आई रियलाइज कि मतलब छोटा सा स्टार्टअप है, और मतलब वहां पे मतलब सब लोग सीनियर इंजीनियर है भी नहीं. एक जो इंजीनियर है वो भी जस्ट पास आउट है, दैट्स द सीनियर मोस्ट इंजीनियर दे आर, एंड दे आर आल्सो टॉकिंग अ लॉट अबाउट क्लीन कोड. तो ये सब चीजें पता कैसे लगेंगी? जब तुम जाओगे ना तब पता लगेंगी. ऐसे ही जब मैं दूसरी इंटर्नशिप में था, मतलब वीकेंड पे भी हमें कभी कभी काम करना पड़ रहा है. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ टेक कल्चर की, मतलब वीकेंड पे भी हो सकता है तुम्हें ग्राइंड करना पड़ रहा है. ये चीज कभी अगर इंटर्नशिप पे गए नहीं होते तो एक्सपेक्टेशन ही गलत लगती कि लाइफ, मतलब डे इन लाइफ वाली वीडियो को देख के और एक्चुअल डे इन लाइफ वाली चीजों में बहुत फर्क होता है. तो इससे तुम थोड़ा सा टेम्परामेंट बना लेते हो.
तो ये जो हर सेमेस्टर वाली इंटर्न होती थी, हर सेमेस्टर की ब्रेक वाली इंटर्न होती थी, सही होती थी और थोड़ा एनर्जी भी सही जगह लगती है। मतलब कॉलेज में देखो, मतलब तुम्हारा कोई भी कॉलेज है 75% अटेंडेंस वाला भी, तुम क्या करोगे, कॉलेज का बहुत पढ़ लोगे, कॉलेज का बहुत ज्यादा पढ़ के भी तुम सबसे ज्यादा कितनी सीजीपीए ले आओगे, 10 ही ले आओगे ना, 10 में से 12 तो लाओगे नहीं। तो अपनी मतलब ठीक है 10 में से 9 वाले की भी सही प्लेसमेंट हो जाती है, 8 वाले की भी सही हो जाती है। तो तुम कॉलेज का टाइम थोड़ा सा कम करके और अगर तुम ऐसे इंटर्न एक्चुअल रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे लगाओ ना, वो भाई मतलब उसकी जो लर्निंग है वो किसी कोर्स किसी चीज से भी बेटर है। मतलब कोई मेरे कोर्स में एनरोल्ड होता है और अगर वो कहता है मेरी इंटर्न लगी, मैं खुद बोलता हूँ भाई कोर्स को यहाँ पॉज कर ले, तो देखता रहिए आराम से, कभी बिंच करते हुए पहले काम कर। मतलब जो काम करके पता लगेगा वो नहीं पता लगेगा कैसे। वो ना इंटर्नशिप करते हुए जो एक्चुअली इंडस्ट्री में होने वाला है उसका एक सिमुलेशन गेम मिल जाता है। मेक सेंस। हाँ, लाइक एक सिमुलेशन गेम है भाई, यहाँ गलतियां कर लो, बिकॉज इंटर्न में फिर भी यू नो एक्सक्यूज्ड टू डू अ फ्यू स्मॉल मिस्टेक्स, कुछ इधर उधर हो गया, दिल स्टिल एक्सक्यूज यू, और आपको एक कहते हैं ना चांस ऑफ एरर मिलता है, गलतियां करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो कि आपको एक कंसिडरिंग आज का टाइम ऐसा है अभी रिसेशन का, दैट पीपल आर लूजिंग जॉब्स एवरी सिंगल डे, सो देयर इज द स्कोप ऑफ making mistakes is really low. While doing internship, that scope is really high. आपको chance मिलता है error करने का, you get to learn from it, and then you get to move forward. Even when we were doing internships at similar places, we did a couple of mistakes, right? We did slow down a few things, but then we were given ample chance, considering we are intern, उसको fix करने का, and that thing helped us a lot when we started in the industry. So yeah, I feel like these are pretty much the things which, like, you know, we would do again, because it's not like ki, you know, we did a lot of good things, or we only did good things to land over here. We did a couple of mistakes as well along the journey, and I think those things could have been a little better. At least somebody who's watching this video should be able to know that, you know, this is what I'm doing right now, and maybe, you know, this is what you could like do better. Even in the comments, I would recommend you could just, you know, write down this is what you're currently doing, is it right or not, and I think Sanket and I will take a look at that and, you know, help you out a little bit in the fact, you know, if you're doing it right or not. But yes, know that, you know, you cannot have a perfect journey when you're trying to code again. We didn't surely have a perfect journey when सबका रोड मैप अलग हो सकता है, सबकी जर्नी अलग हो सकती है। Exactly, right? मतलब you are from a good college, so things are अलग. Exactly. If you are from a bad college, so then things will be different. Correct. But like take guidance from people who have done some proof. They have the proof of work. मतलब रैंडम लोगों से जाके बात करने से बेटर है लाइक गेट सम गुड आइडिया, मेक एफर्ट योरसेल्फ। मतलब खुद से इंटर्न लेने में एफर्ट लगाओ। दीज आर द थिंग दैट मतलब मुझे भी लगता है कि और बेटर तरीके से भी पॉलिश किया जा सकता था। आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि मतलब अगर तुम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन एंड take advices, but do things yourself. Correct, right. But yeah, I think this is what pretty much we wanted to discuss for today in this Tech Brews podcast. And like, I hope you had a good time knowing our journeys, our opinions. These are all our personal opinions, and we definitely do not want to enforce it on anybody. But I feel like whatever we are saying comes out of a lot of experience that we have had over working in the industry and even passing through colleges. Like I was not from a tier 1 college, and Sangeet was also not from a tier 1 college. But yeah, we had a certain ups and downs while our journey. So I hope this sort of video, like, you know, this sort of podcast helps you to understand a little bit about what you should really be doing and sort of take some help from our experiences and our journey. Cool. That being said, इस वीडियो को यहीं पर wrap up करते हैं. If you guys enjoyed this format, let us know. We are planning to make more podcasts like this, and we would be happy if you have some ideas. Drop your ideas in the comment section. Like, we'll definitely talk about it, and make sure you share the video with most of your friends so that they can also listen to what all things we have to talk about. That being said, let's wrap this video here. We are going to meet soon in the next set of podcasts. Till then, take care. Bye bye. And I'm Sanket Singh and Riya Bansal. We are signing off.